चलिए, good morning to one and all. It's being again a time where we have been met out on this webinar platform. अब एक ऐसा platform whereby we had a lot of seminars and webinars on various topics of interest, but this one is a special one. Special one, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज यहाँ पे हमारे साथ में एक नहीं, दो नहीं, पर बहुत सारे अतिथि और हम कहेंगे रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज अवेलेबल हैं, और जो हमारे साथ आज के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चेंजेस एंड अपडेट्स के ऊपर हमें आज हाईलाइट करने वाले हैं. अकोला ब्रांच ऑफ WRC ऑफ ICI वेलकम्स टीम INCI नागपुर. INCI, ये INCI, अगर हम बात करें तो मई 2011 में CBDT had set up a separate directorate intelligence and criminal investigation wing, which the erstwhile Directorate of Intelligence CIB were integrated. The new directorate functions have control of the members' investigation CBDT. The Directorate of Intelligence and Criminal Investigation plays a role as a nodal agency department for collection, collation, and dissemination of data from various sources to generate intelligence. The directorate assists the assessing officers at the time of scrutiny by critical information in the form of individual transaction statement, ITS reports, which we can say it out, which brings information from multiple sources pertaining to any given PAN in a single report. Thus, a comprehensive financial profile of the taxpayer is available with the department. This provides a significant filling to the AOs to help in the real function status of any assessee, their income from various sources, which in turn will help assessing a well-documented and substantiated assessment orders. INCI जिसे हम कहते हैं. So totally in India there are around 18 INCIs, and Nagpur is one of the INCI department out of all those 18. One of the most important compliance function is third party information compliance function is done by the INCI. And from INCI, now who is with us? आप सभी को जान के बहुत ही खुशी होगी, और मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है आपके सामने आज हमारे सामने है डॉक्टर कौमुदी पाटिल मैडम, एडिशनल DIT INCI नागपुर. We have with us as a speaker CA Suresh Ghungrud sir, ITO Nagpur. We also have with us Shri S.H. Srinivas sir, additional DIT. Among the other ITOs available with us, Miss Sai Rao. Good morning, ma'am. Shri Jain sir, Shri P.D. Nandanwad sir, and Vijay Kamble sir. I welcome you all on behalf of Akola branch of WIRC and all the managing committees of members of Akola branch. Welcome you, ma'am. I also welcome all the officials from the respected bank, Akola Janta Bank, Nandura Urban, Khamga Urban, and other banks present over here, Akola Urban, who are representing the banks and the profession also. Definitely, we are going to have a very good session on the SFT today. आगे बढ़ते हैं तो आज के दिन अब कौन स्पीकर हमारे हैं? हमारे स्पीकर नंदनवाल सर हैं, और कौमुदी पाटिल मैडम एडिशनल DIT हमारे लिए आज हमारे क्वेरीज को आंसर करने वाले हैं. मैं सामने थोड़ा सा कौमुदी पाटिल मैडम के बारे में बोलना चाहूंगा. Her professional and educational qualification includes MSc Physics. She is a PhD Education, MEd from Nagpur University. She is third in order of merit in Bachelor of Education and second in order of merit in Masters of Education. She is MA Communication from Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University and open merit from Dada Saheb Gaikwad Puraskar awarded by Government of Maharashtra. Postgraduate diploma in banking, financial markets and insurance from Tata Institute of Social Sciences. Her professional qualification or the professional experience includes she has joined Income Tax Department in 1991 as an Inspector of Income Tax and presently working as Additional Director of Income Tax, INCI Nagpur. Worked in various areas of the department like the administrations, assessments, etc. And she is interested in training and was posted as a faculty in National Academy of Direct Taxes, Nagpur for 6 years. So great achievement, ma'am, to you.
Her literary pursuits include, she has also written out 2 books, a nice book, Ekach Shabda, a book of poems in Marathi, and another book is Mansik Tanavapasun Mukti, translation in Marathi of the book How to Overcome the Mental Tension, published by Ramkrishna Mat Nagpur. So she is a great writer into the various magazines and the newspapers also, and she regular writes in Hindi for the organizations in-house magazines. So a great faculty and a great person over here present before us. Welcome, ma'am, Kamudi Patil, ma'am. And our today's speaker for the session on the statement of financial transactions is Shri Ghungrud sir. Ghungrud sir has passed PSc in first class in 1992. He is a Bachelor of Education in 1994 and joined as UDC in Mumbai in 1994. Worked at various places like investigation, audit, business circle, exemption, etc. Sir is presently working as the ITO INCI headquarters, Nagpur. So I welcome you all over here in this session on SFT. For without wasting much more time, I would request our today's speaker, Shri Ghungrud sir, to please take the charge and please enlighten us with the particular topic, statement of financial transactions. Ghungrud sir. धन्यवाद केयूर जी। आप सभी का INCI डायरेक्टोरेट नागपुर की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार में सभी प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स और जो भी सुनने वाले हैं उन सबका इस वेबिनार में मैं डायरेक्टोरेट की तरफ से स्वागत करता हूं। हम ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज के इस वेबिनार की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो ये वेबिनार है इसमें आप देखेंगे कि दिस इज द वेबिनार रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उसमें जो नए चेंजेस और अपडेट्स हुए उसके बारे में हम इस वेबिनार के द्वारा बात करेंगे। दिस वेबिनार इज ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अकोला ब्रांच ऑफ WIRC। श्री केयूर सर ने बहुत मेहनत की है इसको ऑर्गेनाइज करने में, तो उनका तो मैं अभी पहले ही आभार व्यक्त करता हूं और इस वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं। तो इस वेबिनार को जो हमने डिवाइस किया है, मैडम ने खास तौर पे इसके ऊपर मेहनत करके इसको तैयार किया हुआ है, तो इसको इस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे कि इसमें पहले हम बेसिक जो टर्म्स है इसकी उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसके अनुसार यह पाया गया है कि अकोला में कुछ इस विषय में एसएफटीज के बारे में बहुत ज़्यादा जन जागृति अभी तक नहीं हो पाई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम एकदम यानी शुरुआत से इसको ले रहे हैं, मतलब जो की टर्म्स है उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हमें क्या करना है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने अगर नहीं निभाया तो डिपार्टमेंट की ओर से क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। और उसके बाद फिर जो मार्च 2021 में जो 2 नए चेंजेस आए हैं, 114 जो रूल है उसमें जो सब रूल इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, और SFT 15 और SFT 16 के बारे में फिर हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो उसमें जो है SFT 15 और SFT 16 की जो है हमने स्लाइड्स तैयार की हुई है कि हाउ टू फाइल दोज SFTs, हाउ टू प्रिपेयर द डाटा फॉर दोज SFTs, और उसके बाद हम जो आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये सेशन चलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि पहला तो INCI जो शॉर्ट फॉर्म में हम बहुत बार यूज करेंगे, तो उसका जो लॉन्ग फॉर्म है आपको पता ही है कि इट इज इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इट इज द सेटअप ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विच मॉनिटर्स द SFT कंप्लायंस। ये एक अलग ब्रांच है डिपार्टमेंट की जो SFT कंप्लायंस को मॉनिटर करने के लिए तैयार की गई है। अभी SFT जो है नेक्स्ट जो टर्म आ रही है उसके बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज SFT। तो उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट का एक नया सेक्शन तैयार
गया, इसका काम So, मैंने so your voice is बताया breaking. कि मॉनिटरिंग, Suresh sir, your voice is breaking. लेकिन इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? तो इसका अल्टीमेट पर्पस ये है, तो काम है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। वो काम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे पिछले साल का जो बजट था, तो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उसमें कहा था कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स है दैट शुड बी प्री फिल्ड। तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम अभी सैलरी के बारे में देखते हैं, तो सैलरी का जो भी ग्रॉस इनकम है, आपके जो डिडक्शन एग्जम्पशन है, वो प्री फिल्ड आते हैं, आपके आईटीआर भरते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो प्री फिल्ड आनी चाहिए। मनीष लपटा, तो ये जो है, जो भी प्रीफिल्ड चीजें आनी चाहिए इनकम टैक्स के रिटर्न में, उसके लिए ये जो हमारा जो यूनिट है वो काम करता है। तो एसएफटी जो है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू बी सबमिटेड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटीज ऑनलाइन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके लिए इनसाइट पोर्टल जो है, डिवोटेड पोर्टल तैयार किया गया है, और इनसाइट पोर्टल का यूज करते हुए हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हर साल फाइल करनी है। अभी किसको फाइल करनी है वगैरह वो हम आगे की स्लाइड्स में देखते जाएंगे। रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो क्या होती है और उसका क्या, उसके जो फंक्शंस है वो क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी करें। तो रिपोर्टिंग एंटिटी यानी जो है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक्स है, पोस्ट ऑफिस है, एनबीएफसी से, निधि कंपनीज आजकल खुल गई है उस तरह की, फिर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरेस्टेड है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो वो 100 रूल 114E में दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करें। तो इस प्रेजेंटेशन की जो स्कीम है उसको इस तरह से हमने डिवाइस किया है कि पहले तो की टर्म्स और उसके एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे, फिर जो इसमें की फैक्टर है, एक पैन को कोट करना हर ट्रांजैक्शन के लिए, और उसका क्या उससे क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारे जो की फॉर्म्स है, जैसे फॉर्म 60, 61, फिर 61A एंड 61B। 61B खैर अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फॉर्म 60, 61 एंड 61A के बारे में हम बात करेंगे। फिर एसएफटी जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है 114E में जो दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म 61A के कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग की भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो रिसेंट चेंजेस है एसएफटी में आए हुए हैं वह देखेंगे, उसमें जो डाटा कैसे तैयार करना है और वो प्रीफिल्ड रिटर्न में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, इसकी हम बात करें। तो हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या है? तो रूल 114E ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962 में इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के में दिया गया है। तो जैसे रिपोर्टिंग एजेंसी अगर कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस या निधि कंपनी एनबीएफसी अगर है ट्रांजैक्शन से, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इसमें सुरेश सर, कि जैसे सॉरी सर, कैश परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर्स और बैंकर चेक्स, ये अगर 10 लाख के ऊपर का या 10 लाख का हम लेते हैं। जी जी जी, हाँ हेलो। हाँ सर, सर एक्चुअली आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। तो लेटेस्ट, हाँ, वी वेर एट रूल 114E की स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस कौन से हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिसेस या निधि कंपनीज, एनबीएफसी अगर है तो उनके लिए जैसे कैश परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, बैंकर चेक्स,
अगर फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख के ऊपर का किसी ने परचेस किया है तो उसका इंफॉर्मेशन एसएफटी में देना है। फिर परचेस ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय आरबीआई ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, वो भी अगर 10 लाख या 10 लाख के ऊपर का है। कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉल्स अगर 50 लाख से ऊपर है इन और फॉर्म वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ ए पर्सन इन फाइनेंशियल ईयर। करंट अकाउंट में भी अगर 50 लाख के ऊपर का कैश डिपॉजिट या कैश परचेस अगर है तो आपको कैश विड्रॉल अगर है तो 50 लाख के ऊपर का, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा दैट विल बी अ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन। फिर कैश डिपॉजिट ऑफ ए पर्सन इन वन और मोर अकाउंट्स अदर देन ए करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट इन ए फाइनेंशियल ईयर, अगर ऐसा होता है कैश डिपॉजिट 10 लाख या 10 लाख के ऊपर का, तो दैट विल बी अ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन। one or more time deposit of a person in a bank including a cooperative bank in a financial year, वो भी अगर 10 लाख के ऊपर का है साल में तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। फिर अगर कंपनीज है, जैसे कंपनी इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स है और अदर कंपनीज है तो उनके जो ट्रांजैक्शंस है दैट विल बी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कब? अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 लाख के ऊपर का है कैश में और 1 लाख से ज्यादा के ऊपर का अगर है अदर मोड में, तो दैट विल बी अ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। फिर एक्वायरिंग इन फाइनेंशियल ईयर बॉन्ड्स डिबेंचर्स एग्रीगेटिंग टू 10 लाख और मोर देन 10 लाख रुपीस। एक्वायरिंग इन फाइनेंशियल ईयर शेयर्स इन ए कंपनी एग्रीगेटिंग टू रुपीस 10 लाख और मोर, तो कंपनी ऐसे कंपनी का अगर किसी ने शेयर खरीदी किए हैं 10 लाख या 10 लाख के ऊपर के, तो वो जो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है दैट विल बी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। फिर एक्वायरिंग इन ए फाइनेंशियल ईयर बायबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम एनी पर्सन मोर देन और इक्वल टू 10 लाख रुपीस। फिर म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज के लिए स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन होगा एक्वायरिंग इन ए फाइनेंशियल ईयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स फ्रॉम एनी पर्सन एग्रीगेटिंग टू रुपीस 10 लाख और मोर। फॉरेक्स डीलर्स के लिए फॉरेक्स करेंसी परचेज ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर including foreign exchange card or through a debit or credit card or traveler's check or draft or any other instrument, वो भी अगर 10 लाख या 10 लाख के ऊपर का है साल में, तो फॉरेक्स डीलर के लिए वो जो ट्रांजैक्शन उस पर्सन का स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन होगा दैट इज टू बी रिपोर्टेड। फिर जो अपने सब रजिस्ट्रार से तो उनके ऑफिस में अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी कीमत अगर 30 लाख या 30 लाख के ऊपर की है तो दैट विल बी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। नहीं ठीक है, तेज चालू है। एनी पर्सन हु इज लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, ये भी ध्यान में रखिए, आप सब सीएज है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि रिसीट आपके अगर क्लाइंट्स के पास कोई रिसीट आती है ऑफ कैश पेमेंट फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर, वो अगर 2 लाख के ऊपर का अगर होता है तो दैट विल बी अ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। तो ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस जो है, जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन रूल 114E, तो एसएफटी 61 ए में हमें इसका रिपोर्ट करना। फिर नेक्स्ट जो टर्म हम देखेंगे वो है पैन। आपको मालूम है सभी पैन परमानेंट अकाउंट नंबर से वाकिफ है। इट इज अ अल्फान्यूमेरिक 10 कैरेक्टर नंबर, पहले 5 जो कैरेक्टर अल्फाबेट, फिर 4 नंबर्स और लास्ट वाला अल्फाबेट रहता है उसका। फिर उसके बारे में हम देखेंगे कि हु इज रिक्वायर्ड टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि जो कंपनीज है या फिर बैंक्स है उन सबको जो ट्रांजैक्शंस है जो मॉनेटरी लिमिट के ऊपर होते हैं साल में उनको रिपोर्ट करना है, और वो 114E में दिए हुए हैं सभी ट्रांजैक्शंस, रूल 114E में। एंड फॉर रिपोर्टिंग दोज ट्रांजैक्शन यू हैव टू फाइल और फर्निश फॉर्म 61A। जैसे आपको पता है कि जो पैन है इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर इन द एसेट। अगर कोई पर्सन 2 या 3 प्रकार के अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन साल में करता है और उसके जो भी ट्रांजैक्शन है वो अगर उसके रिटर्न में आईटीआर में प्रीफिल्ड होके आने चाहिए, तो जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा वो दैट विल बी द पैन ऑफ दैट पर्सन, है ना। किसी ने प्रॉपर्टी 30 लाख के ऊपर की परचेस की है,
किसी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, उसी ने अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, उसी ने कोई टाइम डिपॉजिट किया है, या उसको इंटरेस्ट मिला है 5,000 के ऊपर है, उसको डिविडेंड मिला है कोई भी, तो ऑल दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैव टू बी रिपोर्टेड इन द ITR ऑफ दैट पर्सन। और ये कब हो सकता है पॉसिबल? इन सब ट्रांजैक्शंस में अगर करेक्ट परमानेंट अकाउंट नंबर अगर उसने दिया था और जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है उन्होंने अगर उसको प्रॉपरली एंटर किया, तो ये पॉसिबल हो सके। तो इसका बहुत ही रिलेवेंस है सभी। जैसे अगर आप इस वेबिनार में अगर कोई बैंक से रिलेटेड पर्सन जुड़े हुए हैं तो उनको ध्यान में रखना है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन इन SFT 61A, क्योंकि बहुत सारे जो डिफेक्ट्स है, आगे हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो आपके स्टेटमेंट में वो इनवैलिड होने का कारण या फिर उसमें डिफेक्ट आने का कारण, मेन ऑफ द रीजन इज रॉन्ग पैन और नॉन कोटिंग ऑफ पैन। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जब भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस है जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है, वो अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उससे प्रॉपर और एक्यूरेट पैन आपको लेना है। For certain financial transaction, quoting of PAN in document related to financial transaction made compulsory। आपको मालूम है कि रूल 114B जो है, it says that कि in certain particular transactions, quoting of PAN is compulsory। तो आपको नॉर्मली मालूम है कि हम कोई भी जैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट अगर 50,000 के ऊपर हम बैंक में करते हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, सेल ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज पर ट्रांजैक्शन अगर 50,000 के ऊपर है, या सेल ऑफ परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी 10 लाख के ऊपर का है, और सेल ऑफ परचेज ऑफ एनी पर्सन बाय एनी पर्सन गुड्स और सर्विसेज जो 2 लाख के ऊपर का है, तो इन सब केसेस में हमें पैन कोड करना या पैन देना कंपलसरी होता है। ठीक है ना? फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, हम अभी फॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर्म 60, फॉर्म 60, 61 एंड फॉर्म 61A। Now specified entities to ensure that PAN is correctly quoted by the transaction parties। मैंने जैसे पहले बताया कि it is a very important aspect of the financial transaction। तो ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, it is given in the rule 114C, है ना? फिर अगर किसी के पास पैन है ही नहीं तो क्या होगा? तो दैट इज स्टेटेड इन रूल 114D। तो अगर पैन नहीं ले पा रहा है, उसके पास कोई पैन नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? उसे डिक्लेरेशन लेना होता है, एंड दैट इज टू बी टेकन इन फॉर्म नंबर 60। तो फॉर्म 60 में जो वो इंफॉर्मेशन उन लोगों की इंफॉर्मेशन होती है जिनके पास पैन नहीं है। ठीक है ना? So in case the amount of income declared by the transacting party in Form 60 at column 22 is more than the maximum amount which is not chargeable to tax, जैसे 2.5 लाख है अभी, the authority should not accept Form 60 unless PAN is applied for and column 20 of Form 60 is duly filled। Form 60 लेते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए उसको column 22, अगर उसमें टैक्सेबल इनकम है तो आपको Form 60 एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको इंसिस्ट करना है कि वो पैन ले, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि पैन कैन बी इजीली ऑब्टेन, ऑनलाइन भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और बहुत फास्ट सर्विसेज हो गई है पैन। ठीक है? फिर ये जो फॉर्म 60 आपके पास जो आता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, फॉर्म 60 की जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज टू बी फाइल्ड और सबमिटेड इन फॉर्म 61, और ये साल में 2 बार करना होता है। सितंबर जो हाफ ईयर एंडिंग है, वहां तक के जो फॉर्म्स आपके पास जमा हुए फॉर्म 60, उसकी इंफॉर्मेशन फॉर्म 61 में आपको 31 अक्टूबर तक देनी है, और फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो भी फॉर्म 60 आपके पास जमा होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको 30 अप्रैल तक नेक्स्ट हाफ ईयर की देनी होती है फॉर्म 61। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मार्च के बाद कुछ थोड़े चेंजेस आए हैं, 2 नई एसएफटीज आई है, लेकिन मार्च 2021 तक there were 14 types of SFTs, different types of SFTs. And section 285BA gives the legal mandate to the income tax department to collect third party information। तो ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन है कि अगर ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच वर स्टेटेड इन 114E रूल अगर हो रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी आपके लिए कंपलसरी है एज पर सेक्शन 285BA।
ठीक है। फिर ये जो फॉर्म 61A जो है, दैट इज टू बी फाइल्ड at the end of every financial year and on or before 31st May, immediately following the financial year in which the transaction is registered or recovered. जैसे 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए the due date was 31st May 2021 और वो फिर एक्सटेंड की गई थी कोविड के कारण अप टू 30 जून 2021। तो जिन लोगों ने अभी तक एसएफटी फाइल नहीं की है उनसे अनुरोध है कि कृपया जितने जल्दी हो सकती है आपने जो फाइनेंशियल स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसके लिए आपको एसएफटी 61A फाइल कर देनी है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये रिपोर्टिंग एंटिटी कैटेगरी जो है, अलग अलग रिपोर्टिंग एंटिटी कैटेगरी जो है, जैसे बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिसेस, उनको एसएफटी 1 से लेके एसएफटी 14 तक कौन सी एसएफटी फाइल करना अनिवार्य होता है, इस चार्ट में उसको दिया गया है ना। जैसे कोऑपरेटिव बैंक है तो उनको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइप के एसएफटी फाइल करनी होती है और फिर अभी 16 जो आई है वो भी फाइल करनी है। पोस्ट ऑफिस के लिए 3 और एक 16 जो आई है अभी 4 प्रकार की करनी होती है। तो इस तरह से हर रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए इन 16 एसएफटीज में से कुछ न कुछ एसएफटी फाइल करना अनिवार्य है। तो प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ एसएफटी कंप्लायंस, तो इसमें प्रोसीजर क्या होती है? तो सबसे पहले जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है जिनको एसएफटी फाइल करना अनिवार्य है एज पर सेक्शन 285 ऑफ द आईटी, उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इनसाइड पोर्टल पे जाके उनको खुद को रजिस्टर करना होगा और उन्हें एक ITD-REIN ऑब्टेन करना है। जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड एंटिटी रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ITD-REIN जिसको बोलते हैं, ये यूनिक होता है हर एक के लिए। जैसे बैंक के लिए हो गया, पोस्ट ऑफिस के लिए हो गया, कंपनीज के लिए हो गया, तो हर एक के लिए यूनिक नंबर है। तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के थ्रू इसको दिया जाएगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ डाटा फॉर फॉर्म 61 एंड 61 फ्रॉम द इंटरनल डाटा, जैसे की रेडी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायर्ड बाय द रिपोर्टिंग एजेंसी। ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में आप देखेंगे कि क्या क्या जरूरतें होगी। तो पहले सबसे पहले आपको तो रजिस्टर करना होगा, ITD-REIN लेना होगा। फिर जो डाटा है 61 के लिए फॉर्म 60 से और 61A के लिए जो ट्रांजैक्शंस है, रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस, उनकी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करके रखनी होगी। फिर ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसके लिए आपको इनसाइड में जाके वहां से जो यूटिलिटीज है उसको डाउनलोड करना होगा। उसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है आपके सिस्टम्स में होना चाहिए। फिर इनसाइड पोर्टल से ये जो यूटिलिटीज है कैसे डाउनलोड करेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म 61 कैसे करेंगे, उसको अपलोड कैसे करेंगे। फिर वो अपलोड होने के बाद डाटा क्वालिटी रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो डाटा क्वालिटी रिपोर्ट निकालने के बाद अगर हमारी एसएफटी जो हमने फाइल की है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट्स है, तो कुछ एरर्स है, तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, उसके लिए करेक्शन स्टेटमेंट कैसे फाइल करेंगे, ये सब हम अभी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम ये सब नहीं करते, ये तो करना तो है एज पर सेक्शन 285B एंड रूल्स 114, अलग अलग जो रूल्स है उसके अनुसार ये हर एक की जवाबदारी है जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है उनकी, कि उनको फॉर्म 61 फाइल करना है, सबमिट करना है। अगर नहीं करते तो क्या? तो देयर आर पेनल्टी प्रोविजंस। पहली पेनल्टी जो है 271F है, इट इज ₹500 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। अगर हमारी तरफ से कोई नोटिस नहीं आई और आपकी ड्यू डेट के बाद आप फाइल कर रहे हैं तो आपको ₹500 पर डे की पेनल्टी इसके ऊपर लग सकती है। जैसे मैंने बताया इस साल 30 जून आपकी तारीख बढ़ गई थी, तो आपने अगर 31 जुलाई को किया तो 31 डे के लिए आपको ₹500 की हिसाब से जो भी है 15,500 पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद भी आपने नहीं किया और हमने अगर आपको नोटिस इश्यू कर दी 285B5 में, और वो नोटिस का जो भी ड्यू डेट है वो जाने के बाद अगर आप उसको फाइल करते हैं तो आपको ₹1000 पर डे पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपकी नॉन फाइलिंग के पेनल्टी। लेकिन आपने फाइल तो कर दिया है लेकिन इनएक्यूरेट स्टेटमेंट या कुछ गलत जानकारी उसमें डाल दी है स्टेटमेंट में,
तो आपको 271 FAA की पेनल्टी लग सकती है और वो है 50,000 रुपये। तो इन सब से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम अपना काम ठीक से करें, हम इंफॉर्मेशन पूरी गैदर करें और समय रहते हुए उसको इनसाइट पोर्टल पे जाके फॉर्म 61A में अपनी जो एसएफटी है वो फाइल। इसके साथ साथ और भी कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है डिपार्टमेंट, ये सब आप अगर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च किया है। Prosecution proceedings under Section 277 and 277A of the Income Tax Act 1961 can be launched in case of inaccurate or not reporting the information. Section 277 says that false statement in verification, है ना? अगर वेरिफिकेशन का कोई फॉल्स स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, स्टेटमेंट which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है वो प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 277 लॉन्च किया जा सकता है। और अगर कोई पर्सन willfully and with intent to enable any other person to evade any tax or interest or penalty chargeable and imposable under this act makes or cause to be made any entry or statement which is false and which the first person either knows to be false or does not believe to be true in any books of accounts or other document relevant to or useful in any proceeding against the first person or the second person under this act, the first person shall be punishable under section 277. For example, अगर किसी SRO के दोस्त ने कोई 1 करोड़ की रजिस्ट्री कर दी और उसने बोला कि ट्रांजैक्शन मत रिपोर्ट कर और वो हमने डिटेक्ट कर लिया तो SRO के ऊपर 277A लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो 14 प्रकार की जो एसएफटी थी पहले एग्जिस्टेंस में मार्च की, उनमें से जो भी आप लोगों के लिए लागू है, मतलब जो बैंक्स को जो लागू है, पोस्ट ऑफिस को या कंपनीज को जो अपने अपने क्लाइंट्स है छोटी और एमए में, उनको अगर कुछ लागू है तो उन्होंने वो एसएफटी फाइल कर दी थी। अभी जो नए रिसेंटली चेंजेस है और जो वेबिनार हमने डिजाइन किया है जिसके लिए, तो दैट इज अमेंडमेंट टू रूल 114E। एक रूल 5A सब रूल 5A इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके अनुसार हमें एसएफटी 15 एंड एसएफटी 16 ये जो दो नई एसएफटी इंट्रोड्यूस हुई है वो भी फाइल करनी है। अभी वो उसके लिए रिपोर्टिंग एंटिटीज कौन होंगी, उसके क्या रूल्स है, उसके बारे में हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो दिस इज सब रूल 5A which is introduced recently and there is amendment in rule 114। ये ऐसा कहता है कि 285BA जो है एक्ट का सेक्शन, उसके अनुसार अभी म्यूचुअल फंड्स जो है उसके ऊपर या फिर सिक्योरिटीज पर जो भी कैपिटल गेन है दैट इज टू बी रिपोर्टेड। ऑल्सो द डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम जो अर्न करते हैं, डिविडेंड जो है आपको मालूम है कंपनी जो प्रॉफिट में रहती है तो डिविडेंड देती है, तो दैट इज डिविडेंड इनकम। और इंटरेस्ट इनकम, अभी इंटरेस्ट इनकम कौन सा वो भी हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो ये अगर है तो एसएफटी 15 डिविडेंड के लिए और एसएफटी 16 इंटरेस्ट के लिए हमें फाइल करनी है। पहला जो है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये तो नेचुरली दिल्ली और मुंबई में होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में। लेकिन ये जो दो चीजें हैं डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, ये हमारे काम की। आपके अकोला में भी कुछ कंपनीज होगी जो डिविडेंड देती होगी और बैंक्स वगैरह तो है ही आपके यहाँ, पोस्ट ऑफिस है, एनबीएफसी है, हिंदी कंपनी है। तो ये लोग अगर इंटरेस्ट इनकम दे रहे हैं तो इनको भी एसएफटी फाइल कर। डिविडेंड इनकम के लिए कंपनी रिपोर्टिंग एंटिटी होगी, उसको एसएफटी 15 फाइल करनी है। और इंटरेस्ट इनकम के लिए जो है बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्टमास्टर जनरल और एनबीएफसीज, they are the reporting entities and they have to furnish HFT 61। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया SFT 15 डिविडेंड इनकम, SFT 16 इंटरेस्ट इनकम एंड these are the REs। अभी बात आती है कि कौन सा डिविडेंड इनकम हमें रिपोर्ट करना है। तो जो भी डिविडेंड इनकम अर्न करेगा जो भी पर्सन, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन हमें SFT 15 में
देनी है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, तो 1 रुपए रहे, 1 लाख रुपए रहे, 1 करोड़। लेकिन SFT 16 में जो है इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय पर्सन इन अ ईयर in all his bank accounts, if it is more than 5,000 rupees, then that information you have to furnish. ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इंटरेस्ट इनकम कौन सा इंटरेस्ट इनकम, तो जैसे किसी की समझो कोऑपरेटिव बैंक में या फिर जैसे आपकी पोस्ट ऑफिस में अलग अलग टाइप के सेविंग बैंक अकाउंट, फिर RD होती है, फिर FD होती है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो इनमें जो भी इंटरेस्ट वो अर्न करेगा उन सब की टोटल अगर 5,000 के ऊपर जा रही है तो हमें उस पर्सन की इंफॉर्मेशन SFT 16 में देनी है, और हर अकाउंट के लिए अलग अलग रहेगी। जैसे उसके 3 अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है तो उसके 3 रोज बनेंगे उस SFT में, उस पर्सन की उसका सब सेम रहेगा, सिर्फ जो अमाउंट है वो बदलेगी और टाइप ऑफ जो अकाउंट है वो बदलेगा, सेविंग बैंक अकाउंट है, RD जो भी है वो अलग अलग रहेगा। लेकिन उसमें 1,000 1,000 और 3,000 या 1,000 2,000 3,000 ऐसा अगर उसका अमाउंट रहेगा तो दैट इज मोर देन, टोटल इज मोर देन 5,000, so the information of that person is to be furnished in SFT 16। एक नटशेल में आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैडम ने तैयार किया हुआ है SFT टू बी फर्निश बाय होम, और पहले क्या था और अब क्या है। तो जैसे SFT टू बी फर्निश बाय कंपनीज, पहले उनको SFT 7 परचेस ऑफ डिबेंचर्स के लिए, परचेस ऑफ डिबेंचर्स जो है वो 10 लाख के ऊपर का जो था वो था, परचेस ऑफ शेयर्स वैसे ही 10 लाख के ऊपर, बायबैक ऑफ शेयर्स 10 लाख के ऊपर। लेकिन अभी SFT 15 जो है डिविडेंड इनकम, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। तो कंपनीज को पहले 1 2 3 फाइल करनी होती थी SFT, लेकिन मार्च 2021 के बाद उन्हें 4 फाइल करनी होती, ठीक है। और जो बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज और NBFCs है उनको SFT 1 2 3 4 5 6 कंपल्सरी था पहले फाइल करना, और अभी 16 जो है वो कंपल्सरी हो गया है, तो उनको 7 SFTs फाइल करनी होती। तो इसमें से हो सकता है कि कोई बैंक के पास 2 या 3 नंबर की SFT नहीं होगी, तो वो उसमें उस साल के लिए नील रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, नो ट्रांजैक्शन। लेकिन उनको ये सब साथ ही तो भी SFTs का जो प्रिलिमिनरी रिस्पांस है वो फाइल करना अनिवार्य है, अदरवाइज दे विल बी ट्रीटेड एज नॉन फाइलर्स, और नॉन फाइलर्स के लिए फिर जो है पेनल्टी स्टॉक में बता दी थी तो वो लग सकती है, तो वो टालने के लिए आपको प्रिलिमिनरी रिस्पांस इसमें देना होता है। तो इस स्लाइड्स को आप, ये स्लाइड को आप ध्यान में रखेंगे, ये हम आपको बाद में दे भी देंगे, तो इसके अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। अभी CBDT ने कुछ प्रोसीजर इसको इसके लिए दी हुई है, तो न्यू सब रूल 5 है, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, तो सब रूल 5 इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसमें किस तरह से फॉर्म भरना है इसके बारे में डिटेल दी हुई है ना। द रिपोर्टिंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डाटा फाइल। एक्चुअली जो स्टेप्स है SFT फाइलिंग की, तो उसमें से 4 स्टेप्स है में, पहले है डाउनलोडिंग द जेनरिक सबमिशन यूटिलिटी, जो इनसाइड पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमें जो कलेक्ट किया हुआ है डाटा, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें भरना होता है। फिर वो प्रिपरेशन ऑफ डाटा ऑन यूटिलिटी और मेकिंग XML फाइल एज पर स्कीमा ऑफलाइन, उस डाटा को हमको प्रिपेयर करके जेनरिक ब्राउज जेनरिक यूटिलिटी में उसको ट्रांसफर करना होता है, और फिर उसका जो स्टेटमेंट है उसको अपलोड करना होता है। और लास्ट वाली जो प्रोसीजर है, जो भी अपलोडेड स्टेटमेंट है उसका हमको DQR डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो वही प्रोसीजर को हम अभी थोड़ा सा डिटेल में इसमें देखेंगे, ठीक है। और वो DQR डाउनलोड करने के बाद अगर कोई इनएक्यूरेसी हमारे स्टेटमेंट में है तो हमें करेक्शन स्टेटमेंट या डिलीशन स्टेटमेंट फाइल करना। Now let us move to the preparation and submission of SFT 15 and SFT 16। जो मेन 4 मैंने पार्ट्स बताए अभी उनको थोड़ा सा एलेबोरेटली हम देखेंगे इन स्लाइड्स में। तो इसका ओवरव्यू इस तरह से रहेगा कि रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन किसका है उसके बारे में हम डिस्कस कर दिए हैं। प्रिस्क्राइब डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होगा। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, फिर वैलिडेशन ऑफ रिपोर्ट,
जनरेशन ऑफ सिक्योर पैकेज, अपलोड ऑफ पैकेज, और अपलोड करने के बाद DQR निकालने के बाद करेक्शन एंड डिलीशन, और उसके बाद जो FAQs है इसके बारे में क्वेश्चन है उनको हम देखें। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के बारे में हम बात करेंगे तो क्लास ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू फर्निश SFT 15 के लिए कौन है, कंपनी पेइंग डिविडेंड, है ना। और इसकी गाइडलाइंस क्या है, द इंफॉर्मेशन इज टू बी रिपोर्टेड फॉर ऑल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। One report would include detail of dividend payment to one person only. Dividend will be the total amount of dividend distributed during the financial year. ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज क्वार्टरली डिविडेंड देती है, कुछ 6 मंथली भी देती है, तो हमें पूरे साल का डिविडेंड जो है रिपोर्ट करना होता है, क्वार्टरली या 6 मंथली। अभी इसका प्रिस्क्राइब डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ये जो स्लाइड है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे और अपना जो डाटा है उसको इस तरह से अरेंज करेंगे तो आपके स्टेटमेंट परफेक्ट होंगे, उसमें कोई डिफेक्ट होने का कोई गुंजाइश नहीं रहे। तो इसको हम समझ लें। तो पहला है फील्ड के फॉर्मेट, मैंडेटरी और रिमार्क्स, ठीक है। तो पहली फील्ड है RSN, इट इज अ रिपोर्ट सीरियल, और इसका फॉर्मेट क्या होगा, इट इज न्यूमरिक, और 10 इसमें नंबर्स होंगे, 10 डिजिट्स होंगे। तो रिपोर्ट सीरियल नंबर इज द यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई ईच रिपोर्ट इन द फाइल, है ना। एक जो भी यानी जैसे हम समझो एक स्टेटमेंट में एक 500 लोगों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो 500 रिपोर्ट्स रहेंगे उसमें, तो रिपोर्ट सीरियल नंबर वो हर रिपोर्ट के लिए यूनिक हो। फिर फाइनेंशियल जो है ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर हम नॉर्मली 6 डिजिट या 8 डिजिट में लिखते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 को हम नॉर्मली 2020-21 या 2020-2021 लिखते हैं, लेकिन यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर लिखते हो सिर्फ 2020 लिखना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको 2020 लिखना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए क्या लिखना होगा आपने, 2019, क्योंकि 19-20 भी रहा तो भी उसको पहले 4 डिजिट हम लिखें। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 अभी जो चालू है उसके लिए अगर आपको अगले साल SFT भरनी होगी तो आपको FY लिखना पड़ेगा 2021, 2021 होंगे। तो ये ध्यान में रखिए, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन या डिफेक्ट आएगा आपके इसमें स्टेटमेंट में, और फिर उसको आपको करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करना। फिर नेम जब लिखेंगे हम तो हमको 150 कैरेक्टर्स की लिमिट दी हुई है और ये मैंडेटरी है, नेम ऑफ पर्सन और एंटिटी। फिर पैन जो है वो कैरेक्टर से 10, आपको मालूम है अल्फा न्यूमेरिक होता है। अगर पैन अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हमको जिस केस में फॉर्म नंबर 60 हमारे पास आया था तो उस केस में हमें पैन नॉट AVBL ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इसको आप गिनेंगे तो दीज आर द 10 कैरेक्टर्स, PAN NOT AVBL। जहां पैन नहीं है वहां आपको पैन नॉट अवेलेबल लिखना है, पूरा अवेलेबल नहीं, AVBL लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये 10 कैरेक्टर्स। तो वो जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई वही करेगी। अगर ऐसा नहीं है, आपने 9 डिजिट लिख लिए, पैन के भी एक आधा डिजिट आपने गलत लिख लिया या फिर 9 कर दिए उसको 11 कर दिए, तो वो डिफेक्ट में चला जाए। तो आपको ध्यान रखना, आधार आपको मालूम है कि 12 डिजिट का है, लेकिन यहाँ 15 कैरेक्टर्स अभी दिए हुए हैं और ये मैंडेटरी नहीं है। एड्रेस मैंडेटरी है और इसको कंप्लीट एड्रेस लिखना है। अगर आप सिर्फ जैसे नागपुर लिख दिया, अकोला लिख दिया, पूरी डिटेल्स नहीं लिखी, हमें प्लॉट नंबर, एरिया का नाम, स्ट्रीट का नाम, तो ये इनकम्प्लीट एड्रेस माना जाएगा और दैट रिपोर्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस और डिफेक्ट्स क्या होते हैं वो बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। फिर पिन कोड आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में 6 डिजिट का है और ये न्यूमेरिक होता है। मोबाइल नंबर के लिए 20 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, आपको मालूम है 10 डिजिट का होता है, न्यूमेरिक होता है। ईमेल के लिए आपको 100 कैरेक्टर्स दिए हुए। मोबाइल और ईमेल कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि कुछ गलती ना हो, इसलिए उनसे आप जो भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस करते हैं पर्सन, उनका मोबाइल और ईमेल आप लेके रख दीजिए, ठीक है। फिर डिविडेंड जो है, डिविडेंड आपको नेचुरली नंबर्स में हुआ 15 डिजिट तक दिया हुआ है,
तो ये डाटा स्ट्रक्चर, आपका जो डाटा है इस टाइप में आपको मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। ये अगर ठीक से रखा तो देयर विल बी नो डिफेक्ट्स इन द। अभी बढ़ते हैं इसके थोड़े से टेक्निकल पार्ट की ओर। तो हम जाएंगे इनसाइट पोर्टल पर। इनसाइट पोर्टल पर जाने के बाद आप लॉग इन करेंगे आपके क्रेडेंशियल्स, आईडी और पासवर्ड डाल के, है ना। तो ये आपको दिख रहा है डिविडेंड इनकम। द सेम स्क्रीन विल बी अपीयर फॉर द इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो। इसमें हम करेंगे डिविडेंड इनकम टैब, होम पे जाके, उसके बाद डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे, ठीक है। आधार, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल, ईमेल, डिविडेंड, इसी तरह से इंटरेस्ट के लिए लास्ट में इंटरेस्ट है, तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि डिविडेंड और इनकम के लिए सेपरेट टेम्पलेट्स रहे, तो ये डिविडेंड के लिए हम अभी देख रहे हैं फिलहाल। फिर इसके रिपोर्ट्स कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ डाटा फाइल्स, पहले हम डाटा फाइल प्रिपेयर करेंगे। रिपोर्टिंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डाटा फाइल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम देयर इंटरनल सिस्टम। आपके पास जो भी जो डाटा मेंटेन करने की सिस्टम है, उससे आपको क्या करना होगा कि आपका जो वो डाटा है वो इस फॉर्मेट में आपको ट्रांसफर करना होगा। An Excel-based report preparation utility has also been provided to assist small reporting entities in preparing data file. Excel-based reporting report preparation utility आप डाउनलोड करके उसमें भी आपका डाटा आप भर सकते हैं। The data files prepared by the internal system or report preparation utility should be validated using submission utility. अभी validation rules है, there are 40 types of validation rules, है ना, वो भी हम आगे देखें। अभी एक्सेल बेस्ड रिपोर्ट प्रिपरेशन यूटिलिटी जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, आप जब इनसाइट पे जाएंगे तो यूटिलिटी करके टैब है, उस यूटिलिटी रिसोर्स करके टैब है, उस रिसोर्स में यूटिलिटीज में आप जाएंगे तो आपको ये एक्सेल बेस्ड रिपोर्ट प्रिपरेशन यूटिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे डिविडेंड इनकम के लिए अवेलेबल है, वैसे इंटरेस्ट इनकम के लिए भी अवेलेबल है। यूजर कैन वैलिडेट डेट एंड जनरेट टेक्स्ट, ठीक है। ये आप जब जनरेट करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, ठीक है। सक्सेस मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ डाटा इन यूटिलिटी। फिर वो मैसेज मिलने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट फाइल टू जनरेट द टेक्स्ट फाइल। ये टेक्स्ट फाइल जनरेट होने के बाद हम वैलिडेशन करें। तो वैलिडेशन का मैंने बताया कि देयर आर 40 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स, है ना। जैसे पहला है फाइल शुड बी जनरेटेड यूजिंग सबमिशन यूटिलिटी। फिर दूसरा है द हेडर इन फाइल शुड बी एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। फिर है फेल डिक्रिप्शन, फेल डिकम्प्रेशन, फेल सिग्नेचर चेक। फिर सिग्नेचर मिसमैच, सिग्नेचर नॉट अपलोडेड। ये जो स्टेटमेंट हमको फाइल करना होता है उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। तो आपका जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट होना चाहिए, और आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो सिग्नेचर का यूज किया है वही सिग्नेचर आपको स्टेटमेंट फाइल करते वक्त लगेगा। तो सिग्नेचर मिसमैच नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, सिग्नेचर एक्सपायर्ड, ये जो चीजें हैं इसके कारण आपकी जो फाइल है वो वैलिडेट नहीं हो पाई। फिर जैसे आपकी सिस्टम में अगर कोई वायरसेस है या थ्रेट है तो उसके कारण भी आपकी फाइल वैलिडेट नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हमने जो 10 रूल्स देखे थे आरएसएन के बारे में, तो आरएसएन शुड नॉट बी ब्लैंक, है ना। फिर RSN length should not be more than 10. RSN field should not contain non-numeric values, क्योंकि उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो डिजिटल है, 10 डिजिट्स आप उसको दे सकते हैं RSN में, 1 2 से लेके और जो भी 10 डिजिट 1 1 1 1 या फिर 9 9 9 ऐसे आप दे सकते हैं। उसके व्यतिरिक्त अगर आपने कुछ डाल दिया उसमें A15 या फिर ऐसा कुछ अल्फा न्यूमेरिक या सिर्फ अल्फाबेटिकल नंबर डाल दिया तो वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर डुप्लीकेट आरएसएन भी नहीं चाहिए, जैसे पहले रिपोर्ट का आपने 1 नंबर दे दिया फिर 100 के बाद फिर से 1 नंबर दे दिया तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी ब्लैंक,
और वो 4 डिजिट में ही रहेगा, 2021 20-21 नहीं रहेगा, 2021 के लिए 2021 ही रहेगा। Financial year field should not contain non-numerical Sir, excuse me, sir. 4 digit Sir, again, voice is breaking. Sir, voice is breaking. ठीक है, ओके। Excuse me, sir. 150 कैरेक्टर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर पैन के बारे में हमने देखा, पैन के बारे में हमने देखा था कि पैन कैसा होना चाहिए, पैन 10 डिजिट का होना चाहिए। अगर पैन नहीं है तो हमको पैन नॉट AVPL ऐसा लिखना है। फिर पैन डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। आधार लेन शुड नॉट बी मोर देन 15। तो ऐसे ये जो है, ये वैलिडेशन रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके हमारा जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं जेनरिक सबमिशन यूटिलिटी फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जावा बेस्ड सबमिशन यूटिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर वैलिडेशन ऑफ रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड थ्रू इंटरनल सिस्टम। हमने जो भी हमारी प्रिपरेशन यूटिलिटी डाउनलोड की थी, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली थी, उसको भी हमने जेनरिक सबमिशन यूटिलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करना है। द यूटिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द utilities tab of resources available at the home page on Insight portal। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें आने के बाद जेनरिक सबमिशन यूटिलिटी फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में आने के बाद हम एसएफटी टाइप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको फिर वैलिडेट करेंगे। वैलिडेटेड सक्सेसफुली अगर ऐसा मैसेज आ जाता है तो सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ टेक्स्ट फाइल हो गई, ऐसा हम मानेंगे। उसके बाद आता है कि ये वैलिडेशन होने के बाद हमको सिक्योर पैकेज जनरेट करना। आफ्टर वैलिडेशन दैट, ये हमारा अभी प्रिलिमिनरी काम ही है। हम अभी report.insight.gov.in पर जाके ये वाला हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। पहले हमें ये एंड साइन यूजिंग द सबमिशन यूटिलिटी। So voice यूटिलिटी यहाँ देखेंगे तो जैसे डिविडेंड इनकम, sorry sir, जैसे सर आवाज कट रहा है। हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको इम्प्रूव करने का। हमारे वो टेक्निकल मनीष ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन शायद ही इसका प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ नेट का, उसके कारण हो रहा होगा। फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर जेनरिक सबमिशन यूटिलिटी फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इस स्क्रीन में आने के बाद हम डिविडेंड इनकम करेंगे सिलेक्ट। अगर डिविडेंड के लिए हम फाइल कर रहे हैं 15 को, ITDRN डालेंगे। फिर जो हमने फाइल तैयार की है उसको ब्राउज करें, और वो ब्राउज करने के बाद हम जनरेट पैकेज करें। जनरेट पैकेज करने के बाद हमको डिजिटली सिग्नेचर करना होगा। तो ये वाली स्क्रीन अपीयर होगी, आपका DSC इंस्टॉल और अटैच ऑन द सिस्टम विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। उसको सिलेक्ट करेंगे और साइन करके क्लिकिंग जनरेट पैकेज इन प्रीवियस स्क्रीन करेंगे तो हमारा पैकेज जनरेटेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ जाए। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है, एरर इन जनरेशन पैकेज, एरर लॉग विल बी जनरेटेड इन द फोल्डर इन विच यूटिलिटी इज सेव। ठीक है, ये होने के बाद हम फिर अपना जो पैकेज है वो अपलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ द पैकेज। Any file which does not meet the validation requirement will be rejected। Validation के जो rules है उसके अनुसार अगर नहीं होगी फाइल तो that will be rejected। After upload, each upload file will be given a unique statement ID। ये ध्यान में रखिएगा आप कि आप जो भी स्टेटमेंट अपलोड करेंगे स्टेटमेंट ID दिया जाए।
दैट यूनिक स्टेटमेंट आईडी यू हैव टू प्रिजर्व, क्योंकि इस यूनिक स्टेटमेंट आईडी का हमें यूज करना होगा, हमें डिलीशन स्टेटमेंट या करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करना। तो यूनिक स्टेटमेंट आईडी जनरेट जो होगा अपलोड होने के बाद फाइल आपकी, उसको प्रिजर्व करके रखना है। तो क्या होगा जब फाइल अपलोड स्टेटस 3 प्रकार का होगा। एक तो अपलोडेड, यानी फाइल अपलोडेड एंड पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग आ जाएगा, वो कुछ 3-4 मिनट लग सकते हैं उसके लिए। वो होने के बाद 2 मैसेजेस विल अपीयर, 2 टाइप्स ऑफ मैसेजेस विल अपीयर। कैसे? पहला होगा एक्सेप्टेड, अगर आपकी फाइल पूरी तरह से सही है तो फाइल विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, फाइल रिजेक्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग, तो रिजेक्टेड मैसेज आएगा। In case of any error, complete file will be rejected and the rejected reasons can be viewed by clicking rejected link under status column. Status column में जाके हम देख पाएंगे कि reasons क्या है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो user need to correct the relevant errors and upload the file again. Upload level validation में क्या क्या होगा? Upload level validation would be done to ascertain that the correct file is being uploaded. और उसके रूल्स क्या होंगे? तो इसके रूल्स है कि जो फाइल का साइज है, it should not be greater than 6 MB. 6 MB के ऊपर का डाटा उस फाइल में नहीं होना चाहिए। और उसमें जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, it should be kept less than 4 lakhs. तो 6 MB और 4 लाख साइज जो है वो 6 MB के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स should not be more than 4 lakhs in any file. फिर फाइल नेम should not have been uploaded earlier. ठीक है, फाइल नेम is not in the prescribed format. The enter statement ID should be available for correction or deletion statement. मैंने जैसे बताया कि आपको जो ओरिजिनल स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे तो उसकी जो स्टेटमेंट आईडी है वो करेक्शन और डिलीशन स्टेटमेंट को देनी पड़ेगी। अगर आपने वो नहीं दी तो ये जो है अपलोड लेवल वैलिडेशन नहीं हो पाएगा और वो फाइल फिर से रिजेक्ट होती है। ITDRN in the file name should match with the ITDRN mentioned on the portal, है ना। जो आप जिससे आप जिस ITDRN से आप लॉगिन कर रहे हैं और उसी से आपको जो फाइल नेम है उसमें भी वही ITDRN आपको देना पड़ेगा, दूसरा ITDRN आप नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर लॉग इन टू रिपोर्टिंग पोर्टल एंड सिलेक्ट डिविडेंड इनकम टैब अवेलेबल एट द लेफ्ट साइड ऑफ द होम पेज आफ्टर लॉग इन। ये इनसाइड पोर्टल की स्क्रीन आपके ऊपर दिख रही है, तो जैसे होम है, प्रोफाइल है, स्टेटमेंट की प्रोसीडिंग, कंप्लायंस, रिक्वेस्ट, मैसेजेस वगैरह आप देख पाएंगे इसमें। तो इसमें आप डिविडेंड इनकम जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट इनकम लेफ्ट में आप देखेंगे तो ITR फाइलिंग कंप्लायंस चेक दिखेगा, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम। तो हम डिविडेंड इनकम का देख रहे हैं इसलिए हम डिविडेंड इनकम को फाइल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट अपलोड फाइल ऑप्शन करेंगे, ठीक है। डिविडेंड इनकम करने के बाद डाउनलोड टेम्पलेट और अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड टेम्पलेट हमने पहले कर लिया था, अभी अपलोड फाइल करें तो आपको ये इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। ITDRN दिखेगा आपका, रिपोर्टिंग एंटिटी नेम दिखेगा, फिर यूजर नेम दिखेगा, यूजर रोल दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर और टाइप ऑफ फाइलिंग। तो नेचुरली यहाँ डिविडेंड का आएगा, और फिर वो जो फाइल है तो उसको चूज करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट का जो है स्टेटस वो दिखेगा। द फाइल विल बी डिस्प्लेड विद द स्टेटस अपलोडेड, द स्टेटस विल चेंज टू एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आफ्टर सबमिशन। ये अपलोड स्टेटस कुछ समय के लिए रहेगा, 2-4 मिनट के लिए, जब तक वो प्रोसेस नहीं होता है सिस्टम में। और प्रोसेस होने के बाद वो या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। एक्सेप्ट हो गया तो इट इज वेल एंड गुड, और रिजेक्ट हो गया तो हमको रीजन विल बी अवेलेबल ऑन क्लिक ऑफ रिजेक्टेड स्टेटस हाइपरलिंक। जहाँ दिख रहा है ना यहाँ स्क्रीन में रिजेक्टेड जो नीले कलर में दिख रही है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो रीजंस क्या है वो आपको दिखाएंगे। User will be able to download the receipt by clicking PDF icon displayed on right side of the screen. और अगर आपकी एक्सेप्ट हो गई है फाइल तो उसको क्लिक करके आप एक PDF में आपकी रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने रिपोर्ट तो फाइल कर दिया हमारी SFT 15 जो है फाइल हो, लेकिन उसमें अगर कुछ हमें ऐसा लगा कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स, उसमें कुछ करेक्शन रह गए मतलब करने के,
या फिर कुछ ऐसा डाटा गया है कि जो नहीं जाना चाहिए था और उसको डिलीट करना है, तो इसके लिए हम उस स्टेटमेंट को खोल के उसी रिपोर्ट को डिलीट या फिर करेक्ट नहीं कर सकते। करेक्शन स्टेटमेंट के लिए, यानी करेक्शन ऑफ द रिपोर्ट के लिए हमें एक नया स्टेटमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड करेक्शन स्टेटमेंट। इस करेक्शन स्टेटमेंट को सबमिट करते हुए हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट की आईडी डालनी होगी, और जो आरएसएन जिस रिपोर्ट को हमें करेक्ट करना है वो करेक्ट रिपोर्ट हम इसमें करेंगे, और वो जो ओरिजिनल आरएसएन है उसको यहाँ मेंशन। तो ये करेक्शन स्टेटमेंट जब फाइल हो जाएगा तो क्या होगा कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में जो आरएसएन है उसको डिसेबल कर दिया जाएगा, और करेक्शन स्टेटमेंट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट फाइल बाय यू, ऐसा ट्रीट किया है। ठीक है, द रिपोर्ट सीरियल नंबर along with the original statement ID will uniquely identify the report which is being corrected. If the correction statement is successfully accepted, the reports in the earlier statement will be marked as inactive and the newly uploaded report will be active. तो आपके अभी दो रिपोर्ट हो जाएंगे, एक ओरिजिनल रिपोर्ट और एक करेक्शन रिपोर्ट, लेकिन आपका ओरिजिनल आईडी एक ही है, वही आपने ओरिजिनल स्टेटमेंट के लिए डाला था और वही करेक्शन स्टेटमेंट के लिए भी डाला। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कुछ डिलीट करना है, कुछ रिपोर्ट जो है एक्स्ट्रा हो गई थी और आपको डिलीट करना है, तो आपको डिलीशन स्टेटमेंट फाइल करना होगा। तो जो आरएसएन है ओरिजिनल स्टेटमेंट में, उसमें वो इनएक्टिव हो जाएगा और आपका डिलीशन स्टेटमेंट एक्टिव हो जाएगा। तो अभी आपके पास 3 स्टेटमेंट हो जाएंगे, ओरिजिनल, करेक्शन और डिलीशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया डिलीशन स्टेटमेंट। फिर इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कुछ है वो देखेंगे। तो व्हाट आर द की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ अपलोडेड फाइल एट रिपोर्टिंग पोर्टल। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी फाइल तो सही बन गई है, लेकिन आपने पूरे जो वैलिडेशन रूल्स और पहले के जो रूल्स थे हमारे 10 टाइप के, उसको यूज करते हुए आपकी फाइल अपलोड करने की कोशिश की है, तो क्या करना होगा आपको? उसके रूल्स क्या है? तो फाइल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 MB, उसका साइज जो है 6 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो रिपोर्ट है इट शुड नॉट बी मोर देन 4 lakhs. The data should be prepared in specified format specified for particular file. और डिजिटल सिग्नेचर मैंने बताया कि सही होनी चाहिए, और आपकी सिस्टम भी फुल प्रूफ होनी चाहिए, कोई वायरसेस या थ्रेड्स उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेनी होगी। What should be done in case file uploaded at reporting portal has been rejected due to data validation failure? वो जो डाटा है अगर हमने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं डाला है तो क्या होगा? आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी और डाटा वैलिडेशन फेलियर का वहां मैसेज आएगा। तो क्या होगा? इन ऑर्डर टू अवॉइड सच रिजेक्शन रीजंस, काइंडली इंश्योर डाटा इज प्रिपेयर्ड इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट ओनली। जैसे आरएसएन है, आपका पैन है, आपका एवाई है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में आप भरेंगे। ठीक है, the next है what should be done in case file uploaded at reporting folder has been rejected due to failed decryption। तो ये जो है इसके लिए फिर से आपको यूटिलिटी में जाना पड़ेगा, और यूजिंग वैलिडेशन एंड इंक्रिप्शन यूटिलिटी यू हैव टू रीसबमिट योर फाइल। What should be done in case file uploaded at reporting folder has been rejected due to failed decompression? वही उसी तरह से करना पड़ेगा। Please compress the file using validation and encryption utility and then resubmit। सिग्नेचर के बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सिग्नेचर सही जो है वो करेक्ट करनी पड़ेगी आपकी जो भी है, और फिर वैलिडेशन एंड इंक्रिप्शन यूटिलिटी में जाके फिर से साइन करके रीसबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एसएफटी 15 को किस तरह से हम अपलोड करें, उसी तरह से जो एसएफटी 15 डिविडेंड इनकम के लिए थे, एसएफटी 16 इंटरेस्ट इनकम के लिए, तो सेम स्टेप्स है, सेम स्लाइड्स है, तो इनको हम अभी रिपीट नहीं करेंगे कि बहुत सारा समय हो गया है ना। उसी तरह से आपको ये स्लाइड्स दिखेंगे। इसके सिर्फ एफएक्यूज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके तरफ हम जाएंगे। ये देखेंगे आप, वैलिडेशन रूल्स जो है वही 40 प्रकार के, फिर जेनरिक सबमिशन यूटिलिटी, जनरेशन ऑफ सिक्योर पैकेज, जनरेशन ऑफ जेनरिक सबमिशन यूटिलिटी फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में आके उसी तरह से साइन करके अपलोड पैकेज करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे और फिर अपना रिपोर्ट अपलोड करेंगे। अगर वो उसमें कुछ करेक्शन हो गया है तो कैसे करेक्शन करेंगे, कैसे डिलीशन करेंगे, ये भी हम बोलेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि जो बैंक अकाउंट नंबर है वो नॉर्मली न्यूमरिक होता है, लेकिन हमारे SFT 16 में अल्फा न्यूमरिक बैंक अकाउंट नंबर भी एक्सेप्ट हो सकता है ना. द फील्ड is alphanumeric in nature and accept both numeric as well as alphabets so as to be in synchronization with the existing RBI guidelines. It does would easily accommodate certain types of bank accounts such as group accounts which might be alphanumeric in nature. जैसे A1253B वगैरह इस टाइप का जो बैंक अकाउंट नंबर है that can be accepted while submitting SFT 16. ठीक है. बाकी के जो रूल्स है वो सेम एज SFT 15 के लिए. अभी इसका जो इनसाइट पोर्टल है उसका URL जो है वो है https:/report.insight.gov.in. तो इसके ऊपर आप जाएंगे तो इसको आप देखेंगे कि यहाँ कस्टमर केयर भी दिया हुआ है और रिसोर्सेज दी हुई है. उसमें यूटिलिटीज, ट्रेनिंग वीडियोस, ट्रेनिंग मटेरियल, यूजर मैनुअल, ये सब दिया हुआ है. और लेफ्ट में आप देखेंगे तो रजिस्टर और लॉगिन ऐसे दो स्क्रीन्स दिखेंगे. अगर आप इनिशियली रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर पर जाइए और आपके पास ITDRN अवेलेबल है तो आप लॉगिन कर जाइए. ठीक है. उसके पहले आप इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ट्रेनिंग वीडियोस देखिए, ट्रेनिंग मटेरियल देखिए, इसकी यूटिलिटीज के बारे में जानिए. तो बहुत इजी है. और अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो हमारी टीम है आपकी मदद के लिए. हमारी जो नागपुर INCI डायरेक्टोरेट है उसकी जो डायरेक्टर मैडम है हुआ सरकार, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स INCI नागपुर. फिर डॉक्टर कौमुदी पाटिल मैडम है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स INCI नागपुर. फिर हमारी जो टीम है उसमें H श्रीनिवासा EDIT 1 है, उनके पास EDIT 2 का भी चार्ज है. फिर मैं सुरेश घुंगरू ITO रिपोर्टर. फिर साईराव मैडम ITO 1 INCI. फिर श्री DK जैन सर ITO 2 INCI. श्री PD नंदनवार साहब ITO 3 एंड ITO 4 का भी एडिशनल चार्ज सर के पास है. एंड VP कामले साहब जो ITO 5 करके हमारे काम कर. अभी ये भी स्क्रीन आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमने मोबाइल नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए. और आपके एरिया से जैसे अकोला से है तो श्री PD नंदनवार आपके ITO है और उनका जो नंबर है लास्ट में 186 है 75886330. उनसे या फिर किसी भी ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है आपकी SFT 15 और SFT 16 फाइल करते हो. तो यहाँ हम इस प्रेजेंटेशन का जो है समापन करते हैं. इसमें इस प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ दिक्कतें आपको आई होगी, कुछ क्वेश्चंस आपको अगर रेज करने हैं तो भी आप रेज कर सकते हैं. हमारे साथ डॉक्टर कौमुदी पाटिल मैडम जुड़ी हुई है, वो आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर करेंगे. तो केयूर सर आप कुछ पूछ सकते हैं अगर आप. यस सर, थैंक यू सर. सबसे पहले तो थैंक यू सर, बहुत ही डिटेल्ड में आपने ये जो चीज बताई आज SFT के ऊपर बेसिक से लेके बहुत ही बढ़िया तरीके से, और उसपे खास तौर पे जो अमेंडमेंट आया SFT 15 SFT 16, फिर जो वैलिडेशंस के पॉइंट्स आपने बताए, दोज वे पॉइंट्स दैट एवरीवन हैज टू नोट इट आउट. इसी वैलिडेशन को लगता हुआ सर क्वेरीज भी है. हमारे मेंबर की तरफ से क्वेरी आई है अबाउट दी वैलिडेशन एरर्स एंड चैट बॉक्स को उन्होंने पोस्ट किया है. व्हाइल फाइलिंग द SFT XML फाइल, income tax site is showing an error E7007, registration failed, certificate expired, and thus we could not upload the file. Due to this, we could not file in time. Please suggest what can be done now and how can the error be resolved. डेडिया जी, इसका मैं आंसर देती हूँ. यस मैम. ये मुझे लगता है इनका डिजिटल सिग्नेचर शायद एक्सपायर हो गया है. जब भी कभी पहले उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर अपना चेक कर लेना चाहिए कि उनका वैलिडिटी है या नहीं है, और वो डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड होनी चाहिए इस पे पोर्टल पे. दूसरी चीज, जहां पे भी कुछ एरर आता है सिस्टम में तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा,
जिसको भी ये एरर आता है, और वो स्क्रीनशॉट लेते हुए जो हमने अभी कस्टमर केयर का आपको दिखाया हुआ है, तो हेल्प डेस्क को आप एक ईमेल कर दीजिए कि हमें ये एरर आ रहा है, आप इसका सॉल्यूशन दीजिए। क्योंकि जो सिस्टम रिलेटेड एरर्स जो है उसका सॉल्यूशन सिस्टम से ही मिल सकता है, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, एक रीजनेबल टाइम में नहीं मिलता है, तो आप हम लोगों को भी हमने आपको ईमेल दिए हुए हैं, हमारे DIT का भी ईमेल है, मेरा भी ईमेल है। तो आप आपका जो क्वेरी था स्क्रीनशॉट से के साथ वो क्वेरी हमें भेज दीजिए, ताकि सिस्टम डायरेक्टरेट के साथ हम भी ले सकते हैं उसको। आप फोन भी कर सकते हैं, वहां पे फोन नंबर भी दिए हुए हैं कस्टमर केयर के, तो फोन करके भी पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर जो है उसका क्या सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है उनका डिस्क्रिप्शन सुनते हुए कि इनका शायद डिजिटल सिग्नेचर का प्रॉब्लम हो। मनीष, उन्होंने आप हो अभी सुन रहे हो? यस मैम, मैम उन्होंने अभी लिखा है द सिग्नेचर इज नॉट एक्सपायर्ड, मींस इट इज वैलिड। अच्छा, तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आप एक काम कीजिएगा, हमारे इंस्पेक्टर है मिस्टर मनीष कुमार, ये एक्सपर्ट है, उनको मिस्टर मनीष कुमार से टच में होने के लिए कह दीजिएगा, तो ही विल बी एबल टू गाइड हिम फर्दर। ओके, मनीष, इनको और फर्दर गाइड कीजिएगा। ओके, यस मनीष जी, अभी यस मैम। ओके, मनीष जी इस पे कैसा करना चाहिए? मिस्टर मनीष कुमार का नंबर मिस्टर नंदनवार से मिल जाएगा। ओके, मैं मनीष सर का नंबर अगर शेयर हो सके। मनीष सर का नंबर मिस्टर नंदनवार दे देंगे आपको, ओके, आप शेयर कर दीजिए। we have another query whether SFT 15 for dividend is to be filed by the bank. नहीं, वो कंपनीज के लिए ही है SFT 15 सिर्फ। Okay, that is dividend income earned by the companies. Yes, नहीं, not earned by the company. It is declared by the company and earned by whoever is having shares in that company. Okay, okay. Ma'am, another query we have from a member. With due respect, it is submitted that Insight portal is not working most of the time. After login, it is showing site not reachable, and by any means, when we log in, then it is showing an invalid login. After changing the passwords, login ho jata hai. We have lodged complaints many times to the customer care, but no response is received. We expect a solution from your side, ma'am. We'll take up the issue with our Director General who sits in Delhi, and we'll take this message. आप एक email हमें जरूर डाल दीजिएगा कि आपका ये जो experience है, so that it will help us in sending forward that email to Systems Directorate, where the Director of Systems जो है उनके पास ये directly हम भेज सकेंगे। आपके पास से एक email आ जाएगा तो हमें सुविधा हो जाएगी। मैम ईमेल आईडी आपका अगर ईमेल आईडी जो ये पीपीटी जो दिया हुआ है ईमेल आईडी है। ओके, या देयर इज अनदर क्वेरी फ्रॉम अ मेंबर. Portal is showing many times internal server error and the web page is blocked. It is also showing message invalid credentials. Still credentials are correct at our side. Again it seems मैम ये login error वाला ही part है member का भी, कोई चीज की इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हो रहा है और पासवर्ड चेंज करने के शायद वही एरर आ रहा है. अनदर मेंबर भी वही बोल रहे हैं. एक्चुअली इसमें आपका सिस्टम का जो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, अगर कहीं पे भी आईपी एड्रेस हमारा, हम यूजुअली एक आईपी एड्रेस से कर रहे हैं और हम आईपी एड्रेस से जब करने जाते हैं तो सिस्टम वो अलाउ नहीं कर रही है, शायद वायरस के अटैक के ब्लॉक करने के लिए। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। आप उसको जो है सिस्टम के साथ लीजिएगा और आपका जो वायरस प्रोटेक्शन है वो भी उसको आप थोड़ा ठीक रखिए, क्योंकि शायद उसके कारण भी ये ब्लॉक होता है। हमारा भी बहुत बार ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको अलाउ करते हैं, जो पॉपअप ब्लॉक हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर वो अलाउ होता है।
तो आप देखिए, ट्राई करके देखिए, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हम लोग भी उसको सिस्टम के साथ शेयर करेंगे आपका प्रॉब्लम। ओके मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेरी रिसीव्ड बाय मी पर्सनली, मुझे मिला है कि ये जो 2 लाख के ट्रांजैक्शंस के लिए जो 44 AB के केसेस है जिनको एप्लीकेबल है, एंड इफ देयर इज अ सेल अबाउट 2 लाख रुपीस and part payments are received in cash, so then the SFT will become applicable to those 44 AD assessees or not? एक्चुअली उसमें पर ट्रांजैक्शन जो है वो 2 लाख का ये है, तो इफ इट इज नॉट पर ट्रांजैक्शन, अब उसका पर ट्रांजैक्शन का जो Invoice is 2 lakh more, but the payment initial, जैसे कहते हैं ना कि टोकन दे दिया आपको 10,000 15,000 का, पहले 10,000 का कैश पे दे दिया और बाद में फिर चेक से पेमेंट रूट किया इन बुकिंग के लिए। अगर उसका देखिए ऐसा है कि ये जो टोटली उसका कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, उसका बहुत स्मॉल पोर्शन, जैसे आप कह रहे हैं कि टोकन है, इट इज 10-15,000 है, तो फिर उसको वो एक एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन वो पूरा ट्रांजैक्शन उसका 2 लाख के ऊपर का है और वो पूरा कैश में जा रहा है और उसका एक स्मॉल पोर्शन जो है वो चेक से आ रहा है, इसमें जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो सेक्शन लाने का, वो डिफीट हो जाता है। ओके तो आप उसका वो प्रिंसिपल देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया तो इंटरप्रिटेशन का शायद रह सकता है। और वो मेरे ख्याल से आप जब ऑडिट करते हैं तो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई बेटर कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आपको ऑडिट रिपोर्ट में आप लोगों को भी ये देना होता है। यस मैम, यस मैम। बिल्कुल। Ma'am, there is another part of query. It is saying that the total account of a single entity are to be sent for SFT 16, even though the reporting numbers are different, whether the system is right. I would request here, Nilesh ji, please, can you explain the query? नीलेश जी, आप एक काम कीजिएगा, आप डायरेक्टली मनीष को कॉल कर दीजिए और आपकी जो क्वेरी है वो मनीष से डिस्कस कर लीजिएगा। आपके रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो आपके नंबर जो है, जैसे उसमें 3-4 टाइप्स के अकाउंट्स होंगे और उसमें शायद उसका आपको अलग अलग रो में उसको जो आपको देना है, यही प्रॉब्लम शायद उनको आ रहा है, ये जो मैं समझ पा रही है। हेलो मैम, हाँ। प्रॉब्लम ये है कि जैसे सेफ्टी 16 में ये बोला जाता है कि इंडिविजुअल के सब अकाउंट्स के रिपोर्ट आप सबमिट करो, लेकिन जब रिपोर्टिंग नंबर डालते हैं ना तो वो इंडिविजुअली सभी के सब जितनी रोज रहती है ना उसका अलग अलग नंबर डालना पड़ता है। जैसे एसएफटी 2-3-4 में क्या होता था कि जैसे इंडिविजुअल की रिपोर्टिंग नंबर एक ही ले लेता था, वो जैसे 3 नंबर का है तो जितने अकाउंट से रहते थे ना तो 3 नंबर के हेड में वो नंबर ले लेता था। लेकिन एसएफटी 16 के अंदर ऐसा हो रहा है कि एक हेड में अगर 4 अकाउंट नंबर है उसके एफडी वगैरह के, तो भी मुझे रिपोर्टिंग नंबर अलग अलग डालनी पड़ती, 4, 5, 6। तो ये सही है क्या रिपोर्टिंग है? हमें ऐसा डाउट हो रहा था, लेकिन हमने इसे चेंज करना चाहा तो वो अलो नहीं करा हमें। तो ये रिपोर्टिंग नंबर एक ही आना चाहिए एक्चुअली। वो तो मैं सिस्टम से वेरीफाई करके फिर आपको इसका जवाब दूंगी। मैं सिस्टम वालों से थोड़ा इसको कंसल्ट कर लूंगी। या मैम, ऑल राइट, ठीक है। और कोई क्वेरी? यस मैम, यस मैम, एक मिनट। अगला क्वेरी है, once query was raised that in SFT 16 where the interest income is above 5,000 rupees needs to be reported. Does it require to generate RSN no grouped with customer ID, like same RSN no for RSN number for all the accounts of the same customer, or एक्चुअली ये सेम क्वेरी का जो हाँ वो जो है वो हम सिस्टम से ये करके ये क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। ओके, यस कुणाल जी, आपकी क्वेरी के लिए मैम का ऐसा बोलना था, सिस्टम से लेके सॉल्व करवा देंगे। ओके सर, थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेरी मेंबर्स, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी। ओके, अच्छा, अगर क्वेरीज नहीं होंगी तो
थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We still have non-filers of SFT 15 and 16, or we are issuing notices now. I'll just tell the procedure क्या होता है non-filer के लिए. We first issue notice under section 285 BA5. So people are getting 285 BA5 notice, but there are certain reporting entities that are not responding to these notices also. इसमें 285 BA5 नोटिस जब आपके पास आती है तो इसको इट हैज टू बी आंसर्ड ऑनलाइन इनसाइट पोर्टल पे करना है, और उसको आपको क्योंकि हमारे लोग जैसे ही हम लोग नोटिस भेजते हैं तो हमारे इंस्पेक्टर्स जो है वो कॉल भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने नोटिस भेजा हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग अपना चेक नहीं करते हैं इनसाइट पोर्टल फ्रिक्वेंटली. उसके बाद आपने रिप्लाई भी इनसाइट पोर्टल पे देना है, जो भी रिप्लाई है, और एसएफटी फाइल नहीं की है तो एसएफटी फाइल भी करनी है. जो 271 FA की पेनल्टी की जो बात घुंगरूट साहब ने जो समझाई हुई है वो ऐसे कैलकुलेट होती है कि जब हमने 285 BA5 की नोटिस भेजी हुई है तो उसमें दिए हुए पीरियड तक 500 रुपीज पर डे है, और वो पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है तो वो एसएफटी फाइल होने तक 1000 रुपीज पर डे है. तो आप जैसे जैसे लेट फाइल करोगे तो आपकी पेनल्टी बढ़ती जाएगी. और एक बात यह है कि अभी सिस्टम डिटेक्ट करता है फाइलर नॉन फाइलर, तो हमारे पास केसेस जो आती है वो सिस्टम से आती है. तो जिसने भी फाइल नहीं किया होगा, मैं आपको इसीलिए हम लोग क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यू कैन कैरी दिस मैसेज टू योर क्लाइंट्स कि आप जल्दी से एसएफटी फाइल कर दीजिए. अगर रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है तो नील रिपोर्ट फाइल कर दीजिए. नील रिपोर्ट फाइल करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है, या तो फिर आपका प्रिलिमिनरी रिस्पांस चेंज कर दीजिए. दूसरा ये तो हुआ 271 FA का. दूसरी बात 271 FAA की जो है वो पेनल्टी होती है इनकरेक्ट जब डेटा दिया जाता है. ये DQR की बात होती है. जब हम फाइल करते हैं एसएफटी उसके बाद एक डाटा क्वालिटी रिपोर्ट जनरेट होता है, तो वो हम भी जनरेट करते हैं और रिपोर्टिंग एंटिटी को भी जनरेट करना है, और उसमें जो भी डिफेक्ट है उसको रिमूव करना है. ये जब डिफेक्ट रिमूव नहीं होते हैं विद इन रीजनेबल टाइम तो रिपोर्टिंग एंटिटी एलिजिबल हो जाती है 271 FAA के पेनल्टी के लिए, और ये पेनल्टी है 50,000 रुपीज. तो ये पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए. ये हमारा मानना है कि अगर नागपुर DIT चार्ज को 271 FA और FAA की पेनल्टी लगाने की नौबत नहीं आएगी तो हम लोग मानेंगे कि हम ये जितने भी वेबिनार कर रहे हैं उसका सक्सेस हो गया है. और 271 FAA के लिए मैंने जैसे आप डेढ़िया जी को कल भी बताया था, हम लोग बैंक्स का स्पेसिफिक रिपोर्टिंग एंटिटी वाइज भी वेबिनार करने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपका डाटा क्वालिटी रिपोर्ट जनरेट किया हुआ है हमने, तो उसके साथ हम आपसे बातचीत करेंगे. बहुत बार हमने जो कॉमन डिफेक्ट्स पाए हुए हैं वो है इनवैलिड पैन के, जबकि एक बैंक के लिए पैन आपको तो पैन लिंक करना ही है, आधार लिंक करना ही है, तो फिर इनवैलिड पैन आने की जरूरत ही नहीं है. और कुछ डिफेक्ट मैं समझ पाती हूँ कि अगर SRO है तो उसके पास वो पैन जो है वो अलग से कोई बाहर से आ रहा है, ये तो आपका पार्ट ऑफ सिस्टम है. तो इसीलिए आप आपका पैन डेटा जो है वो अपडेट कीजिए. एवरी अकाउंट आप पैन के साथ लिंक कीजिएगा, और आपका इनवैलिड पैन का नहीं आने दीजिए डिफेक्ट. जितने भी है पुराने डिफेक्ट है वो आप रिमूव कर लीजिए. दूसरा एक और चीज है कि हमारे पास हमने चेक किया हमारा स्टैटिस्टिक्स, तो विदर्भ में हमें 4000 रिपोर्टिंग एंटिटीज ने ITDRN लिया हुआ है, लेकिन हमारे एक्टिव फाइलर्स जो है वो अराउंड 676 है. तो मोर देन 3000 जो रिपोर्टिंग एंटिटीज है वो डॉर्मेंट है. इसका मतलब बहुत सारे रिपोर्टिंग एंटिटीज ने गलतफहमी में ITDRN लिया हुआ है. इसमें बहुत सारे ऐसे भी है कि जो 44 AB वाले हैं, उनको लगा कि शायद ये हमें एप्लीकेबल है, लेकिन बहुत से हमने जब ईमेल भेजे, हमने काफी ईमेल भेजे हुए हैं, ये 4000 रिपोर्टिंग एंटिटीज को ईमेल भेजे हुए हैं, तो हमें मोर देन 500 लोगों से रिप्लाई आया हुआ है कि हमने ये गलती से ऑब्टेन किया हुआ है, तो आप कैंसिल कीजिए. अब हम ITDRN कैंसिल नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आपका प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि जब प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब सिस्टम को समझ में आता है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है आपको ये फाइल करने की, तो अगली बार आप नॉन फाइलर के इसमें नहीं आएंगे। दूसरा एक जो है, हम अभी काफी सारे नोटिस जो भेज रहे हैं उसका प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। जो भी है कुछ अवेयरनेस के लिए कैंपेन होता है, क्योंकि हम जैसे आपको जैसे कह रहे हैं हम रिपोर्टिंग एंटिटी को भी भेजते हैं, बहुत बार हम कॉल भी करते हैं, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ये होता है कि वो रिपोर्टिंग एंटिटी का, क्योंकि हमारे पास जो डिटेल्स रहते हैं वो डेसिग्नेटेड डायरेक्टर के हैं, तो उनको तो समझ में ही नहीं आता है कि एसएफटी क्या होता है, क्योंकि ये नई चीज है, लोगों को टीडीएस फैमिलियरिटी हो गई है, लेकिन एसएफटी की फैमिलियरिटी अभी भी नहीं है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मेरा केस कैसे क्या स्क्रूटिनी में आ गया, क्योंकि कभी तो एसआरओ से डेटा आया हुआ है, कभी कंपनी से डेटा आया हुआ है, कभी कोई कोऑपरेटिव बैंक्स या नेशनलाइज्ड बैंक से डेटा आया हुआ है, म्यूचुअल फंड से डेटा आया है, और आपके पैन पे वो डेटा आपके रिटर्न के साथ लिंक होता है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर सिस्टम सिलेक्ट करती है कि इसमें फिर 148 करना है या इसमें स्क्रूटिनी में सिलेक्ट करना है या इसमें कुछ एक्शन लेना है या एओ को फ्लैग करना है। अगर आप ये प्रीफिल डेटा का जो कंसेप्ट है वो इसीलिए है, इट इज टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर। हम लोगों को ध्यान में नहीं रहता है, अगर मेरे पास 10 कंपनी के शेयर्स है और 10 कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और मेरे से अगर निकल जाता है 4 कंपनी का डिविडेंड मैं डिक्लेयर करना भूल जाती हूँ, तो ये फायदा है जब कंपनीज ही फिल करती है, एसएफटी करती है, तो टैक्स पेयर के पास डेटा आ जाता है। आज मैंने अपना खुद का जब रिटर्न फाइल किया, मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं था, प्रीफिल्ड रिटर्न जो आना चाहिए था मेरे पास, ना मेरा इंटरेस्ट का डेटा अवेलेबल था, ना डिविडेंड का डेटा अवेलेबल था। वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अगर एसएफटी फाइल करते तो वो डेटा मेरे पास आ जाता। अब मैंने मेटिकुलसली मेरा एक एक चीज देखते हुए मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, क्योंकि होगा क्या, वो भले ही लेट फाइल करेगा एसएफटी जो है, लेकिन वो मेरे रिटर्न के साथ तो चेक होगा, एनालाइज तो होगा। तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, और जितना आप ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि एसएफटी क्या होता है और उसको क्यों फाइल करना चाहिए, इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विजन मिशन में एक ये है कि वी आर पार्टनर इन द नेशन बिल्डिंग। तो हम कैसे पार्टनर है ये नेशन बिल्डिंग में, हम इस तरीके से पार्टनर है नेशन बिल्डिंग में। हम लोग जब एक कोई सोल्जर जो है उसका ध्यान में आता है कि वो वहां पे बॉर्डर पे हम लोगों की रक्षा करता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये फाइनेंशियल जो या इकोनॉमी की जो है वो रक्षा करते हैं। जब हम एसएफटी फाइल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप ये मैसेज, मेरा सब चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज आपके सब क्लाइंट्स तक पहुंचाइए और एसएफटी जो है वो करेक्टली फाइल कीजिएगा। थैंक यू। और कुछ क्वेरी होगी तो आप प्लीज रेज कर सकते हैं। Yes, ma'am. So it was a wonderful part. Members, are having any other query? हेलो Yes. हेलो Yes, Abhijit ji. सर मैं एक्चुअली मैडम से बात करना चाहता हूँ कि मैडम ट्राई भी कर रहे हैं उसमें पूरा डाटा देने की, सिर्फ इशू जो रेज हो रहे हैं मैडम वो सिस्टम लेवल पे ज्यादा रेज हो रहे हैं। मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो मुझे 3 बार लॉगिन करने के बाद में ब्लॉक कर देता है 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद में मैं फॉरगॉट पासवर्ड के लिए टिकट रेज करता हूँ, नए इससे लॉगिन करता हूँ तो कुछ बार वो लॉगिन दे देता है, लॉगिन करने देता है नए क्रेडेंशियल से, फिर से उसको वो लॉगिन ब्लॉक कर देता है। यानी मैं बार बार उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड चेक कर रहा चेंज। अभिजीत जी, ये इशू हमने ऑलरेडी सिस्टम के साथ लिया हुआ है, हम उसको फिर से फ्लैग कर देंगे, और हमने ये इशू हमारे डीजी के साथ भी, हमारा जो मंथली जो रिपोर्ट्स जाते हैं उसमें भी हमने ये फ्लैग किया हुआ है, क्योंकि ये इशू हमारे पास इसके पहले भी आया हुआ है और वी आर ट्राइंग लेवल पे उसको यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम, थैंक यू मैडम। Members, for this particular part,
already madam and Ghungrud sir have shared the email ID. अगर login को लगता हो कुछ query है आप लोगों का तो please email ID note कर लीजिए और उस पे genuine आपके queries को please forward कर दीजिए ताकि वो भी आगे forward कर पाए और इसका solution मिल पाए. Any other queries? Okay, ma'am, it was a great session. Before I move ahead, ma'am, Nandanwar sir, yes, ma'am, एक मिनट की पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी. अगर हम सबका कैमरास ऑन हो सके तो मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा. इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस एज अ रिमेम्बरेंस पार्ट. आप भी साथ में हैं तो वो एक हो जाएगा. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. On behalf of the Akola branch of WIRC of ICI and all the managing committee members of the Akola branch, I propose a vote of thanks to Kaumudi Patil madam and the entire team of INCI Nagpur who have spared the time. खास तौर पे हम लोगों को आज जो ये SFT का इम्पोर्टेंस फाइलिंग जरूरी है और जो चेंजेस प्लस जो टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं वैलिडेशन के टाइम पे जो बताया है बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू टू ऑल ऑफ देम who have joined over here and also raised their queries. Madam has definitely given us a positive answer for all your queries, and still if you have any other queries, she has shared the respective number of Manish sir and their email ID जहाँ पे हमें इसका मिल सकता है. Thank you all. Apart, yes, नंदनवार सर कुछ आप बताना चाहते थे? आप सभी को मेरा नमस्कार. आज का वेबिनार रिस्पेक्टेड महुआ सरकार मैडम, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स INCI नागपुर, इनके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, इसलिए रिस्पेक्टेड DIT मैडम का बहुत आभारी हूँ. आज के वेबिनार के लिए आदरणीय डॉक्टर कौमुदी पाटिल मैडम, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स INCI नागपुर, इन्होंने मोटिवेट किया, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ. आज के वेबिनार में श्री SG घुंगरूर सर, RTO हेडक्वार्टर, इन्होंने SFT चेंजेस एंड अपडेट्स के बारे में PPT के द्वारा विस्तार से जानकारी दी, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूँ. अकोला ब्रांच ऑफ WIRC ऑफ ICAI के चेयरमैन श्री केयूर डेडिया सर, इन्होंने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारी मदद की, इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. अकोला ब्रांच ऑफ WIRC ऑफ ICAI के सभी पदाधिकारी और एवं सदस्यगण जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आज के वेबिनार को सफल बनाया, इसलिए उन सभी को धन्यवाद देता हूँ. INCI ऑफिस के अधिकारियों ने आज के वेबिनार के लिए हमारी सहायता की, इसलिए सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ. अभी मैं श्री केयूर डेडिया सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वेबिनार का समापन करें. थैंक यू नंदनवार सर. बहुत ही अच्छे से आज का सेशन हम लोगों ने देखा सुना और हमने PPT भी देखा है. मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुरेश सर, प्लीज हम लोगों के साथ आपका PPT शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम मेंबर्स को उसको फॉरवर्ड करवा दे बाद में. जरूर सर, कर देंगे. थैंक यू ऑल. थैंक यू मैडम एंड थैंक यू ऑल द INCI टीम ओवर हियर. थैंक यू टू द DIT मैडम आल्सो फॉर गिविंग अकोला ब्रांच एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग ये सेशन मेंबर्स के बेनिफिट के लिए और सभी फ्रेटर्निटी बैंक्स और सबके लिए कर पाए. थैंक यू ऑल. थैंक यू.